Welcome children. In this video, I will explain you lesson 2, A Gift of Chappals, part 1. Main characters of part 1 are Mridu, Pati or Tapi means grandmother, Thatha grandfather, Rukumani auntie, Lalli, Ravi and Meena are cousins and Mridu is a young girl. So this lesson start with the Mridu. Mridu is living with her grandmother and grandfather in Chennai, and she went to her auntie house, that is Rukumani's house. When she went to Rukumani's house, she knocked the door and Rukumani opened the door, and at the same time Ravi and Meena started to drag Mridu inside the room. Then Mridu said, wait, let me take off my chappals. And when she was taking off a chappal, there she saw a black color slipper. Already it was there, a black color slipper which was full of dust. बहुत सारे उस पर dust गिरे थे, and so it was looking grey in color, and marks of all toes were there on the slipper. वो स्लीपर बहुत पुराना था, इसलिए उस स्लीपर पे जो पैरों की उंगलियों के निशान पड़े हुए थे. मृदु उसको देख के कुछ सोचती उससे पहले रवि dragged her into the room and he took her to the backyard. Backyard means kitchen के पीछे वाले गार्डन में उसको ले जाता है, near the bitterberry bush. And under that bitterberry bush he kept a football, torn football filled with some sand, and on that torn football he kept one small kitten. मृदु को वो किटन दिखाता है जो कि बिटरबेरी बुश के नीचे रखा हुआ है, टॉर्न फुटबॉल में वो किटन को रखा है. एंड दैट किटन वाज लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट शेल. और वो उस वक्त मिल्क जो कैट है वो उस वक्त मिल्क लैप अप कर रही थी. लैप मतलब जैसे हम जब कुछ भी लिक्विड आइटम पीते हैं तो हम कैसे पीते हैं, सिप करके पीते हैं. लेकिन जब डॉग या फिर कैट लिक्विड आइटम जब वो पीते हैं तो वो क्या करते हैं, लैप अप करते हैं, यानी जीभ से उसको पीते हैं. तो शी सॉ दैट कैट विच रवि and Meena had found in the morning outside the gate. सुबह सुबह ही उनको वो cat गेट के बाहर में मिली थी. And they have kept that cat secretly under the bitterberry bush, and nobody knows about that. They have kept one kitten inside the house. Ravi says that he don't want to reveal it. वो किसी को बताना नहीं चाहता है कि किटन उसने रखा है बैकयार्ड में. Why? Because if Pati means grandmother, if his grandmother will know, then she will become angry and she will go to Paddu Mama's house. वो पड्डू मामा के घर चली जाएगी गुस्सा होके, इसीलिए वो उस बात को सीक्रेट रखा है. Now Ravi says that people are saying to be kind toward animals, but when we are showing kindness toward animals, then they are screaming, they are shouting on us. They are saying that why you are bringing that dirty creature inside the house. So here contradictory behavior is shown. Then Ravi says that it is very tough to bring milk from kitchen and give to that kitten. Why it is very tough? Because he went to the kitchen to bring milk for the kitten, and nobody knows that there is kitten inside the house. So he went secretly. वो चुपके से जाता है कि वो धीरे से किचन से मिल्क लेके आ जाएगा और कैट को दे देगा. बट पाती देख लेती है उसको किचन से. जब वो मिल्क निकाल रहा होता है फ्रीजर से, तो पाती उसको देख लेती है. एंड
Then she asked him that why you are taking milk. Then Ravi said that he is hungry, he is feeling hungry. वो भूखा है इसलिए मिल्क ले रहा है. तो फिर वो पाती को मिसलीड करने के लिए, पाती को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए वो मिल्क पीता है और बहुत ज्यादा ही पी जाता है, थोड़ा ही बच पाता है. और फिर धीरे से जब पाती कहीं और काम में बिजी हो जाती है तो वो जल्दी से दौड़ता हुआ आता है और मिल्क को कोकोनट शेल में डाल के फिर वापस टम्बलर, जो टम्बलर यानी कि ग्लास को वापस ले जाके वो किचन में रखता है और फिर धो के रखता है, उसको साफ करके रखता है. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वो बहुत ही सिंपैथी है, ही इज शोइंग सिंपैथी टुवर्ड द cat and also taking care of it. Then after that he says that he kept name of that kitten as Mahendra Verma Pallava Punei, and in short he says that MP Punei. उसने बताया मृदु को कि उसने कैट का नाम रखा है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे. तो मृदु बोलती है कि ये तो पूरा रियल नाम जैसा लग रहा है, रियल नेम लग रहा है, बिल्कुल कैट का नाम तो लग ही नहीं रहा है. उसके बाद फिर वो अपनी जो कैट है उसकी जो किटन, वो जो है छोटी सी किटन, उसकी तारीफ करने लगता है. वो बहुत बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करता है. ही स्टार्टेड टू प्रेज द कैट एंड ही सेज दैट इट इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट एंड दैट कैट्स फर इज लाइक द like a lion's mane. Lion's mane means hair around lion's face and neck. तो वो बोलता है, रवि बोलता है मृदु को कि जो कैट का जो हेयर है, जो फर है, वो लायंस के मेन की तरह है. जो लायन के जो फेस और नेक पे जो हेयर होता है या फिर फर होता है उसको बोलते हैं लायंस मेन. तो वो कैट के फर को वो कंपेयर करता है लायंस के मेन के जैसा. एंड देन ही आस्क्स टू मृदु वेदर शी हैज एनी आइडिया अबाउट द एम्बलम ऑफ पल्लवा किंग्स. तो वो पूछता है मृदु से, क्या तुम्हें पता है एम्बलम क्या है, पल्लवा किंग का एम्बलम क्या है. तो मृदु गीगल करती है. गीगल मीन्स लाफ इन अ सिली वे. वो अजीब सा हंसती है. उसके बाद रवि फिर से बताना स्टार्ट करता है, फिर से अपनी कैट की तारीफ करना स्टार्ट करता है और बोलता है कि once he went to Mahabalipuram and there he saw a statue and that statue was the statue of this cat's forefather. Thathas etc etc. One line is there here and उसका मतलब होता है कि वो जो स्टैच्यू देखा था वो इसी कैट के फोरफादर का स्टैच्यू था. उसके बाद वो बताता है कि दिस महेंद्रन मीन्स दैट कैट हियर इज अ डिसेंडेंट. डिसेंडेंट मीन्स सक्सेसर, केम फ्रॉम, वंशज जिसको बोलेंगे हिंदी में, डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. और वो बोलता है कि उसी एंशिएंट कैट का ये सक्सेसर है, उसी एंशिएंट कैट के खानदान का ये कैट है जो हमारे घर में आया है. देन ही सेज दैट द एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी इज लायन. लायन इज द एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी एंड ही सेज दैट lion is the forefather of this cat. उस कैट के फोरफादर को किसको बताता है? उस लायन को बताता है जो कि पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम है. बहुत सारी वो यहाँ पे क्या है, उसके इमेजिनेशन को दिखाया जा रहा है. वो बहुत ही इमेजिनेटिव है, बहुत ज्यादा इमेजिन करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी कैट की तारीफ कर रहा है. उसके बाद वो क्या बताता है कि वो जो कैट है वो उस फैमिली का मेंबर है जो कि महाबलीपुरम का ऋषि कैट है. जो महाबलीपुरम का ऋषि कैट है उसी का वो फैमिली मेंबर है. और जो महाबलीपुरम का जो ऋषि कैट है वो इजिप्ट, उसके जो फोरफादर है वो इजिप्ट से आए थे. इजिप्ट में क्या है,
लोग एंशियंट इजिप्ट के लोग, जो पुराने जमाने के जो इजिप्ट के लोग थे, वो कैट गॉडेसेस को प्रे करते थे और उसको बोलते थे बेस्टेट। बेस्टेट मीन्स गॉडेसेस ऑफ वॉर। तो वो कैट गॉडेसेस को प्रे करते थे और उसी कैट गॉडेसेस का एक फैमिली मेंबर पल्लवा डायनेस्टी के का जो शिप था वो इजिप्ट गया हुआ था, तो उसमें वो छुप के बैठ जाता है और फिर पल्लवा डायनेस्टी आ जाता है। और जब वो यहाँ पे आता है तो फिर उसके और भी फैमिली मेंबर बनते जाते हैं और फिर उसी का जो फैमिली मेंबर है वो ऋषि कैट है और उस ऋषि कैट का फैमिली मेंबर कौन है? महेंद्रन। महेंद्रन जो कि उसके घर में आया है। और फिर तभी उन लोगों को एक क्रिचिंग साउंड सुनाई देता है। क्रिचिंग मीन्स ऑफुल साउंड। ऑफुल साउंड सुनाई देता है एंड दैट साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द विंडो। वो एक विंडो था, वहीं से वो क्रिचिंग साउंड आ रहा था। एंड व्हाट अ वायर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड। और वो बहुत ही वायर्ड साउंड था। वायर्ड मीन्स स्ट्रेंज साउंड था और स्टार्टल्ड मीन्स सॉफ्ट। तो वो स्ट्रेंज साउंड को सुन के मृदु एकदम शॉक्ड हो गई और जो एमपी पुन्नई यानी कि महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई जो कैट है वो भी डर जाता है और डर के मारे उसके पूरी बॉडी के जो बाल होते, जो फर होते, वो खड़े हो जाते हैं डर के मारे। एंड देन ही जम्प्ड। वो वहां से कूद के और एक बैम्बू ट्रे रखा हुआ रहता है, कूद के बैम्बू ट्रे की तरफ जाता है जिसमें कि पूरी चिल्ली भरे हुए रहते हैं। चिल्ली, वो बैम्बू ट्रे में चिल्ली रख के सुखा रहे होते हैं वहां पे बाहर में। तो वो वहां से जंप करता है क्योंकि वो बहुत डर गया था और जंप करके उस बैम्बू ट्रे की तरफ जाता है और जब बैम्बू ट्रे से वो थोड़ा जाके टकरा जाता है और उसमें से कुछ चिल्ली उड़ के मतलब उछल के उसके ऊपर, महेंद्रन के ऊपर गिर जाता है और फिर वो म्याऊ म्याऊ करने लगता है। तो फिर रवि बताता है कि दैट क्रीचिंग साउंड, दैट ऑफुल साउंड वेंट ऑन एंड ऑन। वो अब कंटिन्यू आ रहा है और फिर रवि बताता है कि ये ऑफुल साउंड किसका है? कि लल्ली, सी इज प्लेइंग वायलिन। वो लल्ली के वायलिन, लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है और उसी के वायलिन से ये ऑफुल साउंड आ रहा है, ये बैड साउंड आ रहा है। ऑफुल मीन्स बैड साउंड आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो रवि बोलता है कि वो वायलिन बजाना तो सीख रही है लेकिन वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती ठीक से, क्योंकि वो बहुत दिनों से सीख रही है और ऐसे ही बजा रही है। और जो म्यूजिक मास्टर है वो जब वायलिन बजाता है तो उसका जो वायलिन का जो साउंड है वो बहुत अच्छा आता है। एकदम ऐसा लगता है कि उसकी जो ट्रेन है वो एकदम स्पीड में, व्हीजिंग मीन्स मूविंग क्विकली, व्हीजिंग मीन्स मूव क्विकली। तो उसकी जो जब म्यूजिक मास्टर बजाता है वायलिन तो ऐसा लगता है कि उसका जो ट्रेन है एकदम ट्रैक पे बड़े स्पीड में चल रहा है। लेकिन जब लल्ली बजाती है वायलिन तब ऐसा लगता है कि उसका ट्रेन हमेशा पटरी से डीरेल होता रहता है, पटरी से उतर जाता है।